Hi there. Our today's video is going to be super exciting and interesting because today we are going to see animations transitions in LibreOffice Impress, and in addition to it we will see how to insert any audio or movie in a presentation and to insert hyperlinks. So all the topics in chapter 5 animating text and objects of Linux based cloud class 6 are super interesting. So let's come and see one by one. But before that, I want to give you a super duper news that on my channel, that is on Pickup 24/7, this channel only, I have started posting videos for coding. You may go and watch all the videos because in simplest and easy method, I am teaching how to animate, how to make your own games, and soon a video will come in which you will be able to make your own app. And how proud moment it will be for you if you will make your own game like Flappy Bird and will make your own app. तो मुझे भी ये देखकर बहुत खुशी होगी and will feel proud of myself if my students will learn to code without joining any classes and if they learn by their own. So subscribe to my channel if you want to learn to make your own apps and games, animations, and hit the bell notification. So now let's come to our today's topic of LibreOffice Impress. Firstly, we will insert few slides in it. And then in these slides, we will insert few elements. Before I will show you animation and transition, just be clear with the difference between the two and the purpose of applying animations and transitions. So these tools are used to enhance the appearance of presentation, through which you can make your own presentation attractive, effective, engaging, and professional. Because using these special effects creates a better impact on the audience. Now see the difference between the two, between the animation and the transition. So animation is to move objects in any direction of the slide. Objects may be any text, graphics, charts, or logos. We will animate the elements of the slides, that how an object will enter or exit or behave on a slide during presentation. And transition effect is applied to a single slide or to all the slides to give the effect when one slide changes to other during slideshow. मतलब जब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है तब वहाँ जो बीच में हमें जो इफेक्ट्स नजर आते हैं वो होते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट. और एनिमेशन क्या होता है कि एक स्लाइड पे कोई भी ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, लोगो या चार्ट कुछ भी किस तरह से एंटर करेगा, एग्जिट करेगा या ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन वो उस स्लाइड पे किस तरह से बिहेव करता है, ये होता है एनिमेशन. तो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन अप्लाई एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस. तो सबसे पहले हम एनिमेशन देखते हैं. इस स्लाइड पे पहले मैं एक इमेज इंसर्ट करूंगी और उस पर हम डिफरेंट एनिमेशन अप्लाई करके देख लेते हैं. ये मैंने ये वाला इमेज ले लिया है जो मेरा फ्लैपी बर्ड वाला वीडियो है उसका. अब ये साइड वाली बार में जो आपको आइकन दिख रहा है स्टार वाला, ये एनिमेशन पेन के लिए आइकन है. आप इसको क्लिक करेंगे. एनिमेशन हमें किस पे अप्लाई करना है उसे हम सिलेक्ट करेंगे. तो हमें इस वाली इमेज पे अप्लाई करना है, तो इसे मैंने सिलेक्ट किया. उसके बाद ये जो प्लस साइन है ये ऐड इफेक्ट के लिए है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे. जब हम इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये खुलेगा इमेज 1 और एंट्रेंस अपीयर. हम इसको इमेज 1 को सिलेक्ट करेंगे. अब यहाँ पे जो कैटेगरी दिख रही है, जब आप इसके ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे तो एंट्रेंस मतलब जब भी स्लाइड में आपका वो एलिमेंट आएगा तो उसको एंट्री कैसे करनी है उसके लिए हम यहाँ एनिमेशन दे सकते हैं. एम्फेसिस, जब वो वहां पे बना हुआ है, एक बार एंटर होने के बाद जब बना हुआ है उस समय उसे कैसा बिहेव करना है तो आप ये एम्फेसिस पे दे सकते हैं. एग्जिट, जब वह एलिमेंट इस स्लाइड से एग्जिट करने वाला हो तो उसे किस तरह से एग्जिट करना है वो भी हम देख लेंगे. मोशन पाथ्स, जब वो एंट्री करता है या एग्जिट करता है उस समय उसको कैसे किस पाथ से आना है वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं. मिसलेनियस इफेक्ट्स में और भी दूसरे इफेक्ट हैं. तो सबसे पहले हम इसका एंट्रेंस देख लेते हैं. जब एंट्रेंस में हम जाएंगे तो मैं आपको बताती जाती हूँ, एक एक पे टैप करते जाती हूँ. आप यहाँ पे ये वाला जो इमेज है
किस तरह से स्लाइड पे एंटर करेगा वो आप यहाँ इफेक्ट देखते जाइएगा। फ्लाई इन जब हम करेंगे तो इस तरह से फ्लाई होके आएगा नीचे से। वेंटियन ब्लाइंड्स करेंगे तो इस तरह से अपीयर होगा। बॉक्स करेंगे तो इस तरह से चेक बोर्ड में इस तरह से एंट्री करेगा। दिस इज सर्कल, दिस इज ओवल वर्टिकल, and there are so many more here. You can check by your own. बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो ये सब तो किस तरह से एंट्री करेगा हुए। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले एम्फेसिस पे। एम्फेसिस में हम देखते हैं कि कैसे 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 एनिमेशन होगा। ग्रो एंड श्रिंक, बड़ा होगा और फिर छोटा हो जाएगा। स्पिन, ट्रांसपेरेंसी, टिटर, तो ये सारे इफेक्ट्स हैं, आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। उसके बाद हम एग्जिट देखेंगे कि जब ये एलिमेंट यहाँ से जाएगा तो किस तरह से एग्जिट करेगा। फ्लाई आउट में इस तरह से ये जाएगा, जो भी हमने एंट्रेंस पे देखे थे सेम यहाँ एग्जिट में भी आपको मिलेंगे। क्रॉल आउट, पीक आउट, व्हील, वाइप, फेड आउट, स्विवेल, ये सारे हैं। आपको जो अच्छा लगता हो वो आप अप्लाई करके एनिमेशन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वाली इमेज पे एनिमेशन अप्लाई करके देखते हैं कि अप्लाई कैसे होंगे। तो अभी आपने सारे इफेक्ट्स तो देख ही लिए हैं, अब हम इस पे एनिमेशन, इस वाली इमेज पे एनिमेशन अप्लाई करके देखते हैं। पहले मुझे एंट्रेंस चाहिए तो मैं इस पे एड इफेक्ट में एंट्रेंस लूंगी। पहले एंट्रेंस में मैं चेकर बोर्ड ले लेती हूँ, आफ्टर प्रीवियस रख लेती हूँ ताकि पहले एक बार जब स्लाइड आ जाए उसके बाद ये इमेज आए। तो मैंने आफ्टर प्रीवियस रख लिया है। डायरेक्शन डाउनवर्ड कर लेती हूँ, नीचे की तरफ चेकर बोर्ड खुलेगा। ड्यूरेशन 0.50 सेकेंड का है, मैं इसको बढ़ा लेती हूँ, 1 सेकेंड का रख लेती हूँ। और डिले सिर्फ 1 सेकेंड का रख लेते, 0.5 सेकेंड का रख लेते हैं। अब मुझे इसका एम्फेसिस भी देना है तो मैं फिर से एड इफेक्ट पे जाऊंगी। अब यहाँ पे मैं यहाँ से मैं चूज करूंगी एम्फेसिस। एम्फेसिस में मैं टिटर रख लेती हूँ, यह भी मैं ऑन क्लिक रखूंगी। और ड्यूरेशन इसका 1.5 सेकेंड रख लेते हैं हम। डिले 0.5 सेकेंड का ही रख लेते हैं। चलिए अब मैं इस पे तीसरा एनिमेशन इफेक्ट डालूंगी, फिर से एड इफेक्ट करेंगे। और तीसरा एनिमेशन इफेक्ट के लिए हम यहाँ पे मैं एग्जिट इसको दे रही हूँ। एग्जिट कैसे करना है, एक्सिट एक्सिट एक्सिट, बूमरैंग रख लेते हैं हम। इस तरह से ये एग्जिट हो जाएगा। ये भी मैं ऑन क्लिक ही रख लेती हूँ। और ड्यूरेशन ठीक है और डिले मुझे देना नहीं है। अब हम इस प्रेजेंटेशन को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि स्लाइड शो पे हमें एनिमेशन कैसा नजर आएगा। ये मैंने F5 किया, F5 से रन किया। ये देखिए पहला स्लाइड अभी आया है पर उस पर कुछ नहीं हुआ है जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगी, क्योंकि हमने इवेंट क्या दिया है, ऑन क्लिक दिया है कि जब मैं क्लिक करूंगी तभी वो पहला एलिमेंट एंटर हो। ये मैंने क्लिक किया तो ये आपका चेकर बोर्ड से वो एंट्रेंस हो गया उस इमेज का। अब फिर से जब मैं क्लिक करूंगी तो एम्फेसिस वाला एनिमेशन आएगा। ये मैंने क्लिक किया, ये एम्फेसिस, और जितना मैंने वहाँ 1.5 सेकेंड दिया था उतने ड्यूरेशन के लिए हुआ। अब जब मैं फिर से क्लिक करूंगी तो इसका एग्जिट होगा। ये मैंने क्लिक किया, ये इस तरह से ये
बूमरैंग्स की तरह एग्जिट हो गया। ये हमारी जो ना खाली स्लाइड्स थी वो चल रही है और एग्जिट प्रेजेंटेशन। तो ये हुआ एनिमेशन। आप इस तरह से एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांजिशन कैसे अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने बताया था, ट्रांजिशन होगा कि जब एक स्लाइड जाएगी और दूसरी स्लाइड जब आएगी तो उसके बीच में ट्रांजिशन इफेक्ट हमें डालना है। तो हम ये सेकंड वाली स्लाइड पर ट्रांजिशन इफेक्ट डालेंगे और फिर आप देखिए कि कैसा इफेक्ट नजर आएगा। मैं यहाँ पे भी एक कोई सा भी इमेज इंसर्ट कर लेती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता पड़े। इसमें मैं ये वाला ले लेती हूँ, मेक बॉल एंड पैडल गेम विदिन 3 मिनट्स। ये भी मेरा वीडियो है, आप जाके जरूर वॉच कीजिएगा। अब ये हमारा सेकंड स्लाइड हुआ। अब मैं ट्रांजिशन के लिए 2 ही स्लाइड की जरूरत है, तो ये 2 स्लाइड में हटा देती हूँ। इस पे भी आपको अगर एनिमेशन देने हैं तो आप दे सकते हैं। एक बार फिर से आपको एनिमेशन में दे के बता देती हूँ। तो इसका हम एंट्रेंस रख लेते हैं, ऑन क्लिक, वाइप, और इसका एग्जिट रख लेते हैं हम। स्प्लिट, ये भी ऑन क्लिक ही रखूंगी मैं, एग्जिट भी ऑन क्लिक। हॉरिजॉन्टली बस स्प्लिट हो रहा है इतने सेकंड में, ठीक है। ये दे दिया मैंने। अब ट्रांजिशन पे आएंगे हम। तो एनिमेशन पेन को बंद कर देती हूँ मैं, और यहाँ पे आपको सेकंड वाला आइकन दिख रहा है, ये स्लाइड ट्रांजिशन वाला है। यहाँ हम आएंगे। अब ये वाला कैसा अपीयर होना चाहिए तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एक बताती जाती हूँ, आप फिर से देख लीजिए और फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। अनकवर में इस तरह से आपका स्लाइड आएगा, बार्स में इस तरह से आपका स्लाइड अपीयर होगा, चेकर्स में इस तरह से, शेप में इस तरह से, बॉक्स में इस तरह से आएगा, वेजेस में इस तरह से, बहुत सारे इसमें दिए, आप खुद करके देखेंगे। मेरा जो सबसे फेवरेट है वॉर्टेक्स है। चलो मैं वॉर्टेक्स लगा के आपको अप्लाई करके बताती हूँ। ये वॉर्टेक्स मेरा फेवरेट है। इसके लिए हम यहाँ पे ड्यूरेशन 2 सेकेंड है, ठीक है, 2 सेकेंड में ये अपीयर हो रही है, अच्छा लग रहा है। इसके लिए हम साउंड दे देते हैं, क्योंकि साउंड के साथ ये वाला ट्रांजिशन बहुत अच्छा लगता है। मैं ये दे देती हूँ, अच्छा लग रहा है ये। चलिए ऑन माउस क्लिक ही हम रखते हैं और अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड हम कर देते हैं। तो ये वाली स्लाइड जब अपीयर होगी तब भी ट्रांजिशन होगा, और जब ये वाली स्लाइड अपीयर होगी तब भी ट्रांजिशन होगा। तो ये हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ से। अब हम हमारा प्रेजेंटेशन रन करके देखते हैं F5 से। देखिए पहला स्लाइड आ गया है, लेकिन अभी इसका पहला एलिमेंट नहीं आया जो इमेज है। मैं क्लिक करूंगी तब आएगा, क्योंकि हमने सारे ऑन इवेंट पे देख के रखे हैं। ये एनिमेशन चल रहा है अभी उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, ये एग्जिट हुआ एलिमेंट। अब मैं जब क्लिक करूंगी तब सेकंड स्लाइड आएगा, क्योंकि सब हमने ऑन क्लिक इवेंट पे दे रखा है। तो एक क्लिक किया मैंने, म्यूजिक, फिर मैं जब क्लिक करूंगी तो ये आपका सेकंड स्लाइड का एलिमेंट आया, और इस तरह से एग्जिट हमने, क्योंकि एम्फेसिस तो दिया नहीं था। तो ये हुआ हमारा एनिमेशन और ट्रांजिशन बोथ। आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपको ये सब मिलेगा, आप वहां से ट्राई कीजिए और एक प्यारा सा प्रेजेंटेशन एक बनाइए। बाकी टॉपिक्स इस चैप्टर के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय फॉर नाउ।